Good afternoon to all. Welcome to our webinar, Ayurveda series. Myself, Dr. Preeti Negi, Medical Advisor at NutriCare Life Sciences and your host for today. NutriCare Life Sciences is India's fastest growing herbal company with the motto of health to you and to your family. I welcome you all and thank you for joining us today. So today we are discussing on diabetes, which is commonly known as Madhumeh or sugar. Today, the global prevalence of diabetes is about 46 crores, and it is estimated by 2030 it will increase to 57 crores. India alone has 7 crore cases of diabetes mellitus, and it is increasing day by day. So it has now become the diabetic capital of the world. So if you have any queries related to diabetes, you can drop your questions in our comment section and a doctor shall answer it. So there are certain myths and facts about diabetes which has to be cleared. So today we have Vaidya Sujata Chaudhary ma'am as a guest speaker. She has completed her BMS from Patanjali Ayurved College, Haridwar. Then she pursued her MD in Kai Chikitsa Medicine subject from State Ayurvedic College and Hospital, Haridwar. She is also the author of the book Shushruti Agartant. We welcome you, ma'am, and it's an honor to hear from you. Thank you so much, Dr. Preeti, and thank you for inviting me and giving me this platform to directly interact with the audience and share my views on this very hot topic. As you told about the prevalence of the disease. So we can clearly see that this is very critical situation. Now India is also becoming the diabetic capital. So this is the need of the hour that we should come together and we should share our experiences and bring the awareness for this very particular topic. Thank you so much. Yes, मैम बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज विद आयुर्वेदा मैम मैं चाहती हूँ आप थोड़ा एक्सप्लेन करें हमारी ऑडियंस को डायबिटीज मधुमेह जिसे शुगर भी कहते हैं ये क्या होता है और इसके कॉजेस क्या क्यों होता है ये yes very good question first of all सबसे पहले तो what is diabetes then I would say that it is a set of complex disorders जब भी डायबिटीज होगा तो कोई एक सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिलेगी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स हमें मिल सकता है या बहुत सारी कंडीशंस हमारी बॉडी में ऐसी हो सकती हैं जो कि प्रेजेंट करेंगी उस टाइम दैट व्हेन एवर यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस डायबिटीज बट एवरी डिजीज हैज अ कार्डिनल फीचर तो जब हम इसकी बात करें तो आयुर्वेद में स्पेशली जो इसके लिए बोला गया है प्रभुता विल मूत्रता So a set of complex clinical disorders with specially this condition that is abnormal micturition. So what is abnormal micturition? केवल frequency ही नहीं quantity भी बढ़ जाना और साथ में उसका जो physical characteristics हैं of the urine they also show some abnormal behavior like for the color, pH, turbidity. तो सबसे पहली बात अगर हमें किसी को भी लगता है कि डायबिटीज है या नहीं उसके लिए अगर पहला जो लक्षण आपको मिलेगा वो यही मिलेगा कि बहुत ज्यादा जो है मिक्चुरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी बार बार आपको अर्ज होगी यूरिन जाने की और यूरिन की क्वांटिटी भी जो नॉर्मली जितनी होती है एक हेल्दी इंडिविजुअल की उसके कंपैरेटिवली ज्यादा क्वांटिटी होगी दूसरी बात ये कंडीशन होगी प्रभूत मूत्रता अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद द नेक्स्ट कंडीशन इज आविल मूत्रता आविल मतलब उसकी फिजिकल जो अपीयरेंस है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक नॉर्मल यूरिन के होने चाहिए वैसे नहीं होते उसकी बजाय उसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है चाहे वो पीएच को लेके टर्बिडिटी को लेके
स्मेल उसकी चेंज हो सकती है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हमें मिल सकती हैं। तो ये सबसे पहली चीज है कि हमें डायबिटीज है या नहीं। जो पहला लक्षण पेशेंट को जो देखने को मिलेगा अपनी बॉडी में, अगर ऐसा किसी को भी होता है तो उन्हें अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराना चाहिए या एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए इन सभी लक्षणों को लेकर के। मैम फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन है मैम, कुछ लोगों को लगता है कि उनको ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज हो रहा है और कुछ लोगों को लगता है कि डायबिटीज के बाद उन्हें ओबेसिटी हो रहा है, तो मैम इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, एक्चुअली जो सबसे पहली ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो तरीके की डायबिटीज होती है। देखिए, अगर हम आज के अकॉर्डिंग देखें, मतलब आयुर्वेद को एक बार के लिए भूल जाते हैं, मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, दो तरीके की डायबिटीज है। तो डेफिनेटली जो टाइप 2 डायबिटीज है वो ओबेसिटी के बाद ही मिलेगी। और ऐसा होता क्यों है, उसके लिए हमें पैथोफिजियोलॉजी को समझना पड़ेगा। देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेट होगा, वो हमारे बॉडी टिश्यूज को नरिशमेंट देगा। तो अगर हमारा खाना इस तरीके का है, बहुत फैटी, ऑयली, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं और दिन में सोते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, दिन में सोने वाला। मतलब डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज उतनी है नहीं और आराम ज्यादा है अगर हमारी लाइफ में, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे फैट सेल्स हैं बॉडी में वो बढ़ने लगते हैं, यानी कि ओबेसिटी आने लगती है। अब वो अलग अलग तरीके की ओबेसिटी हो सकती है, जैसे पुरुषों में खास करके सेंट्रल ओबेसिटी ही ज्यादा होती है, एब्डोमिनल फैट ज्यादा बढ़ता है। लेकिन महिलाओं में इसके अलावा भी जो है बाकी जगहों पर भी फैट देखने को ज्यादा मिलेगा। तो जब फैट बढ़ जाता है, फैट बढ़ना मतलब जो फैट सेल्स हैं वो एबनॉर्मल हो गए, या तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं मात्रा में, या फिर एक फैट सेल का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। तो जो नॉर्मल फैट सेल होना चाहिए एक हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी में, उस तरीके का फैट सेल नहीं है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसको हम बोलते हैं दूषित हो जाना, फैट का दूषित होना, यानी एक एबनॉर्मेलिटी आ जाना पर्टिकुलर उस बॉडी टिश्यू में। तो सबसे पहले टाइप 2 डायबिटीज की शुरुआत यहीं से होती है। इसको लेके एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि अगर हमारे पेरेंट्स को है तो हमें भी डायबिटीज होना ही है, जबकि ऐसा नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज या जो आफ्टर ओबेसिटी होता है, वेट गेन के बाद होता है, वो डायबिटीज उसको हमें नहीं बोलना चाहिए कि वो ड्यू टू जेनेटिक कॉज है। अगर वो आपको 30 या 40 साल की उम्र में होता है, हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसको लेके आपकी टेंडेंसी ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि जिस फैमिली में अगर उनके फादर मदर को ये प्रॉब्लम रही हो, तो वही खान पान जो है फैमिली में होता होगा, उसी तरीके की लाइफस्टाइल एक पूरी सभी फैमिली मेंबर्स एक ही तरीके की लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। तो जब उस तरीके की चीजों को आप फॉलो करते रहेंगे सभी फैमिली मेंबर्स, तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स को होता है तो आगे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो एक रिस्क फैक्टर में आ ही जाते हैं, उनको रिस्क रहेगा डेफिनेटली डायबिटीज होने का। तो यहाँ पे जो रीजन है सिर्फ खान पान और हमारी एक्टिविटीज को कम करना। अब जैसे ही वो फैट सेल गड़बड़ होते हैं या फैट बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ये फैट सेल्स हैं, हर बॉडी के हर सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन है हमारी बॉडी में जब वो नॉर्मल स्टेट में रहते हैं। ऐसे ही फैट सेल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं उनको वो रिलीज करते हैं, और जो ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करते हैं उनको भी वो रिलीज करते हैं। तो अगर वो फैट सेल एबनॉर्मल हो जाएंगे तो अब उनका बिहेवियर भी एबनॉर्मल होगा, यानी अब इसके बाद ब्लड प्रेशर भी बढ़ने के चांसेस होंगे और आपका ब्लड शुगर भी बढ़ जाएगा। जो इंसुलिन ग्लूकोज को लेके आ रहा था वो इंसुलिन अब फैट सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि सेंसिटिविटी जब वो आता है फैट सेल के पास, तो कुछ ना कुछ इस तरीके के फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो उस सेंसिटिविटी को बताते हैं कि हाँ, इन फैट सेल्स को या इन मसल सेल्स को जरूरत है ग्लूकोज की। बट क्योंकि वो फैट सेल एबनॉर्मल हो गया, वो जो सेंसिटिविटी फील कराने वाले जो फैक्टर्स थे वो अब रिलीज नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपर अमाउंट में। तो बस खास करके यही रीजन होता है कि अब इंसुलिन को भी ये पता नहीं चलेगा कि ग्लूकोज को लेके मुझे जाना है उस फैट सेल तक, और दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस
के कारण जो डायबिटीज हो रही है, हमारी मसल सेल तक, फैट सेल तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पा रहा है, वो कंडीशन डेफिनेटली वेट गेन होने के बाद ही होती है। तो ये चीज हम सभी को क्लियर करनी चाहिए कि ये वाला जो पर्टिकुलर डायबिटीज है जो वेट गेन के बाद होता है, ये बहुत खतरनाक है। और जो दूसरा डायबिटीज है वो वेट लॉस के कारण होता है। तो अगर आप डायबिटीज के बाद भी वेट गेन कर रहे हैं तो आपको ऐसा डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि डायबिटीज की वजह से ओबेसिटी हुई है। कहीं ना कहीं आपकी दिनचर्या पहले से गड़बड़ थी, आपकी बॉडी के फैट सेल्स, फैट टिश्यू या मसल मास पहले से विकृत हो गया था, अगर मैं कहूँ एबनॉर्मल हो गया था, उसकी वजह से डायबिटीज हुई। और अभी भी अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो मोटापा बढ़ता जाएगा साथ के साथ। तो मोटापे से डायबिटीज होता है, इसको हमें बहुत क्लियरली समझने की जरूरत है। मैम, एक नॉर्मल ब्लड शुगर वैल्यूज क्या होती है और किस रेंज में एक पर्सन अपने आप को डायबिटिक कंसिडर कर सकता है, किस वैल्यू पर? देखिए, अगर आप लैब में टेस्ट कराते हैं तो ब्लड प्लाज्मा की बात करें, हम प्लाज्मा में शुगर लेवल की बात करें तो प्लाज्मा में ही हमें एक्चुअली करवाना चाहिए। ब्लड शुगर लेवल नॉर्मली हाई आता है, जैसे अगर हम आर्टरीज पे, जैसे एक वो घर पे हम ग्लूकोमीटर ले लेते हैं ना, तो उससे हम प्रिक करते हैं अपनी फिंगर को, वो वाला जो ब्लड आएगा वो कैपिलरीज का ब्लड आएगा। और उसमें नॉर्मली जो ब्लड ग्लूकोज हमें देखने को मिलेगा, जो रीडिंग हमें उस मशीन में देखने को मिलेगी, वो नॉर्मली ज्यादा होगी। तो लैब में जो टेस्ट किया जाता है वो डायरेक्टली वेन से ब्लड लेके टेस्ट किया जाता है, क्योंकि आर्टरीज में तो ग्लूकोज है ही है, डेफिनेटली उसको अलग अलग टिश्यूज तक पहुंचाना है। बट वेन्स में जब वो ब्लड वापस आ रहा होता है तो वो वाली जो रीडिंग होती है, अगर वो मात्रा में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वेन्स में हमें एग्जैक्ट रीडिंग देखने को मिलेगी। और उसमें भी अगर हम प्लाज्मा में उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करें तो हमारी रीडिंग बिल्कुल सही आती है। अब इसमें भी दो तरीके से हम देख सकते हैं। पहली चीज हमें देखनी चाहिए फास्टिंग को लेके, और दूसरी चीज हम खाना खिलाने के बाद भी जो है उसको मेजर कर सकते हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस हम टेस्ट कर सकते हैं कि कितना टॉलरेंस है। तो अगर फास्टिंग की मैं बात करूं तो 110 से नीचे नीचे अगर हमारा ग्लूकोज लेवल है, प्लाज्मा ग्लूकोज, तो वो एक हेल्दी इंडिविजुअल है, इसको शो करता है। लेकिन अगर 110 से 126 के बीच में है mg/dl, तो वो प्री डायबिटिक कंडीशन हो सकती है। यानी अब पेशेंट को अलर्ट होने की जरूरत है, अपना खान पान और लाइफस्टाइल में बदलाव लाने की जरूरत है, उसको परामर्श लेने की जरूरत है वैद्य से। और यही चीज अगर हम आफ्टर फूड या आफ्टर ग्लूकोज देके ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो 140 के अगर नीचे है तो वो बिल्कुल नॉर्मल कहा जाएगा। लेकिन 200 से नीचे है, 140 और 200 के बीच में अगर है तो प्री डायबिटिक कंडीशन हो सकती है। उस केस में हमें डरने की जरूरत है, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने की जरूरत है। उससे ज्यादा अगर है तो डेफिनेटली पेशेंट डायबिटिक होगा। मैम, एक क्वेश्चन आया है कमेंट में कि अगर किसी की फैमिली में पहले से अगर डायबिटिक रन कर रहा है, मतलब डायबिटीज रन कर रहा है, तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आज आने वाली जनरेशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं डायबिटीज के प्रति? देखिए, जैसा अभी मैंने बोला, अगर टाइप 1 डायबिटीज था तो टाइप 1 डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे और वो बाय बर्थ मिलेगा। वो जो भी बच्चा पैदा होगा उनकी फैमिली में, उसको बर्थ से ही, और उस टाइम तो लगभग पता नहीं चल पाता है, कई पेरेंट्स को 1-2 साल के जब पेशेंट्स होते हैं तो उन्हें पता चल जाता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे आजकल जो हैं ये केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि कई लोगों को मतलब ओबेसिटी के बाद होता है, जैसे हमने अभी बात करी, तो उनको 30 साल 40 साल, तो उन्हें ये डर रहता है कि अगर हमारे पेरेंट्स को था तो हमें भी होगा। तो मैं एक बार फिर से बोलूंगी कि जो टाइप 2 वाला है, आफ्टर ओबेसिटी वाला डायबिटीज है, उसमें आपको सिर्फ अपनी दिनचर्या सुधारने की जरूरत है। बीज में दोष होता है, डेफिनेटली आयुर्वेद कहता है कि बीज, किसी कोई डायबिटिक मदर है और उसको वो अगर अपने लिए प्लानिंग कर रहे हैं प्रेगनेंसी की, तो उनको पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक तरीका तो ये है ताकि जो बीज में दोष ना हो, यानी उनकी पूरी बॉडी की क्लीनिंग हो, और जिनसे वो प्रोजेनी बननी है, जिन सेल्स से, वो वाले सेल्स उनके हेल्दी हो जाएं ताकि बेबी में वो चीज ना जा पाए।
और अगर ऐसा नहीं होगा तो बेबी ओबेज हो सकता है, और थोड़ा भी गलत खान पान करेगा तो उसको टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होने के चांसेस रहेंगे इन लाइफ आगे भी। तो एक उपाय इसका ये है कि पहले ही प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही जो मदर और फादर हैं उनको अपनी बॉडी की क्लीनिंग करानी चाहिए, उनकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, वैद्य से मिलना चाहिए। गर्भ संस्कार भी इसको आयुर्वेद में बोला जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले माता पिता के खान पान और आहार विहार को ठीक कराया जाता है, कुछ मेडिसिन दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, और उसके बाद वो अगर प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो बिल्कुल हेल्दी बेबी होगा। और मानिए कि अभी आप उस सिचुएशन में नहीं, आपके मदर फादर को था और अब आपको ये डर सता रहा है कि हमें ना हो, तो अब आपके पास तो सिर्फ यही ऑप्शन है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल ठीक रखना है, समय से सोना है, दिन में नहीं सोना है, दिन में सोना अवॉइड करना चाहिए, और सूर्योदय से पहले उठना है, यानी अपनी दिनचर्या को आप ठीक रखें। खाने में आप संतुलित आहार लें, मतलब कुछ भी ऐसा आहार आप ज्यादा ना करें, जैसे आप बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स ना खाएं, बहुत ज्यादा घी दूध इन चीजों को आप बहुत ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, घी और दूध थोड़ा होना चाहिए मात्रा में, लेकिन इसके लिए आप अपनी प्रकृति के हिसाब से, आप जिस जगह पर रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से पहले आपको अपने आसपास किन्हीं वैद्य से मिलना चाहिए। वो आपको इसके लिए बेस्ट परामर्श देंगे कि आपके लाइफस्टाइल कैसी हो, आपका खान पान कैसा हो, आपको अनाज कौन सा अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, व्यायाम आपको कितना करना चाहिए। तो ये छोटी मोटी चीजों को अगर आप अपने रेगुलर रूटीन में लेके आएंगे तो डेफिनेटली आपको डायबिटीज कभी नहीं होगा, अगर आपके माता पिता उससे पीड़ित हैं तो भी नहीं होगा। मैम एक क्वेश्चन आया पंकज जी की तरफ से कि जी शुगर लेवल और HbA1c में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जो शुगर लेवल हम देखते हैं, बेसिकली होता क्या है बॉडी में, ब्लड, हमने जो भी खाना खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, प्रोटीन था, बहुत सारी चीजें थी। कार्बोहाइड्रेट बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, उसी ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलने वाली थी। वही ग्लूकोज अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो गया तो, और इंसुलिन उसको अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा रहा, मसल सेल्स फैट सेल्स तक उसको जाना चाहिए था, नहीं पहुंचा रहा, तो अब वो ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ने लग जाएगा, जितना होना चाहिए था उसके कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। अब यही ब्लड क्या होता है, किडनी में जाता है, हमारा ब्लड किडनी से फिल्टर होता रहता है, ये हम सभी जानते हैं। तो जब वो फिल्टर होने के लिए जाता है तो नॉर्मली हमारी किडनी का काम ये रहता है कि कुछ भी एक्स्ट्रा चीज अगर हमारे ब्लड में है जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है तो वो उसको निकालने की कोशिश करने लगती है। तो इसी वजह से वो शुगर बाहर निकलने लगता है, और इसी कारण से हमारे जो यूरिन में जो चेंजेस, हमारी सबसे पहली जो बात हुई थी कि यूरिन में चेंजेस आने लगेंगे, तो वो सबसे पहला जो सिम्टम है पेशेंट को पता चलेगा, उसका यूरिन थोड़ा सा टर्बिडिटी उसकी बढ़ जाएगी और पीएच उसकी चेंज हो जाएगी, और वही सब लैब में भी टेस्ट किए जाते हैं। तो ये तो ब्लड शुगर है, आजकल यूरिन का भी टेस्ट किया जाता है, और थोड़े ये जो एडवांसमेंट्स हुए हैं टेक्निक के उसके हिसाब से हम ब्लड शुगर को पहले ही मेजर कर लेते हैं जिनमें हमें लगता है कि रिस्क फैक्टर है, तो बजाय इसके कि वो इतना ज्यादा बढ़े और किडनी से फिल्टर होके बाहर निकलने लगे, उससे पहले ही हम ब्लड में उसको मेजर करते हैं। ब्लड में भी जैसा मैंने आपको बताया, अब ब्लड में क्या होता है कि आरबीसी के साथ में ग्लूकोज नहीं मिलता है। आरबीसी नॉर्मली O2 ऑक्सीजन को कैरी करती है ना, लेकिन जो ग्लूकोज है वो प्लाज्मा में ज्यादा रहता है, तो अगर हम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट करवा सकते हैं। दूसरी बात, धीरे धीरे अगर ये ब्लड में पड़ा रहे 2-3 महीने तक, हम ध्यान ना दें अपनी हेल्थ का, और हमारा जो प्लाज्मा में ग्लूकोज था वो हाई रहे, बहुत बढ़ा रहे, कंट्रोल ना कर पाए हम, तो धीरे धीरे क्या होता है कि बिना किसी एंजाइम के ही जो हमारा आरबीसी होगा, रेड ब्लड सेल्स होंगे, उनके साथ में भी ये ग्लूकोज जुड़ जाएगा। इसी को कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी से ही हीमोग्लोबिन अटैच रहता है, और उसी हीमोग्लोबिन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ये जुड़ जाता है। तो HbA1c जो टेस्ट होता है वो हमें 2 या 3 महीने से, अगर हमारी कंडीशन खराब होगी, यानी पेशेंट ने कंट्रोल नहीं किया होगा उस दौरान अपना ब्लड ग्लूकोज, उसने अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखी होगी, अपना मेडिसिन ठीक से नहीं ली होंगी पेशेंट ने, तो उसकी वजह से आरबीसीज के साथ के लिए उसकी एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी उस ग्लूकोज की। और अब जो HbA1c मेजर करते हैं उसमें हम यही देखते हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ में कितना ग्लूकोज जो है वो अटैच्ड है।
तो अगर जितना ज्यादा अटैच्ड होगा उससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है 2-3 महीने से बहुत, क्योंकि ये 1 या 2 दिन में नहीं होता, इसको होने में यानी आरबीसी के साथ उसको अटैच होने में टाइम लगता है, 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। तो HbA1c जस्ट हमें ये बताता है कि 2 से 3 महीने से हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से HbA1c एबनॉर्मल आता है। यस मैम। मैम एक मनीष जी का एक क्वेश्चन है कि अगर किसी को पहले से हाई कोलेस्ट्रॉल है और हाई बीपी की दिक्कत है, तो कैसे वो उनके डायबिटीज को अफेक्ट करेगा? देखिए, हाई कोलेस्ट्रॉल अपने आप में एक ऐसी कंडीशन है कि आपका खान पान ठीक नहीं है, और हाई बीपी भी अगर आप बोल रहे हैं तो वो भी हमें आपके फिजिकल स्टेटस के लिए ये चीज बताती है कि आप की लाइफस्टाइल में हो सकता है ज्यादा एक्सरसाइज ना हो, आप बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स का या बहुत फैटी चीजों का हो सकता है आप अपनी डाइट में ज्यादा शामिल करते हो, दिन में सोना आपका रहता हो, तो इन सभी चीजों की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, बीपी बड़ा होता है, और वही आगे जाके अगर इन चीजों पे कंट्रोल ना किया जाए तो डेफिनेटली ओबेसिटी होके और फिर बाद में वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये रिस्क डेफिनेटली इन लोगों को हो सकता है। मैम आपने प्री डायबिटिक सिम्टम्स बताए थे, तो मैम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है पेशेंट? प्री डायबिटिक कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा यूरिन में तो इतनी प्रॉब्लम्स हमें नहीं दिखाई देंगी, लेकिन बॉडी सिम्टम्स में हमें चेंजेस लग सकते हैं, जैसे हाथ पैर में जलन होना, बहुत लिथार्जिक सा फील होना, क्योंकि वो ग्लूकोज तो हमारे मसल सेल और फैट सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्योंकि हम अगर हमारी मसल्स को प्रॉपर एनर्जी मिलती है तभी हम एनर्जेटिक फील करते हैं, तो लिथार्जिक फील करेगा पेशेंट, हो सकता है उसका मुंह थोड़ा सूखा रहने लगे। जब एक्सेस यूरिन आने लगेगा तब तो डेफिनेटली मुंह का बार बार सूखना ये सिम्टम मिलता ही है, लेकिन प्री डायबिटिक स्टेज में भी ऐसा हो सकता है कि आप लिथार्जिक फील करें, आपके हाथ पैर में जलन होने लगे और आपका मुंह थोड़ा सूखने लगे, आपको अपने जो डेली रूटीन के काम है उनको करने में भी आलस आने लगेगा। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं पहले ही। बाकी अगर वेट बढ़ता है पेशेंट को तो उन्हें पहले ही अवेयर हो जाना चाहिए, वेट, कोलेस्ट्रॉल, बीपी कुछ भी बढ़ा है तो उनको डेफिनेटली अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए अवेयर हो जाना चाहिए पहले। यस मैम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज से रिलेटेड 2 टर्म्स आते हैं कि मैनेज करे डायबिटीज को, दूसरा आता है प्रिवेंट करे डायबिटीज को। तो मैम मैनेजमेंट और प्रिवेंशन में क्या डिफरेंस है और कैसे हम डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं और कैसे हम डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये डॉक्टर प्रीति आपने। मैं एक बात बताती हूँ, डायबिटीज का मैनेजमेंट एलोपैथिक में नहीं है। उनके पास क्या है कि जैसे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हमारे ब्लड में, तो उनकी कोशिश जस्ट ये रहती है कि इस ग्लूकोज को नॉर्मल लेवल पे हम बनाए रखें, भले ही मेडिसिन के थ्रू या खान पान, अगर वो अपनी डाइट अपने हिसाब से कुछ बताते हैं तो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अब यहाँ पे आयुर्वेद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली बात जो मैं बता रही थी टाइप 2 डायबिटीज में, तो वो कंप्लीटली क्योरेबल है। तो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद के लिए हमें लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि वो कंप्लीटली क्योरेबल है। आपको पहले ही, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज है, वैद्य के पास जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? आप एलोपैथिक मेडिसिन की बुक खोलेंगे, केडी त्रिपाठी, बहुत ही जो एमबीबीएस करने वाले छात्र हैं या फिर आयुर्वेद वाले, उनके बीच में भी काफी चलती है ये किताब, जिसमें मेडिसिन की पूरी नॉलेज है। तो उसमें ये बात साफ साफ लिखी है कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो मेडिसिन देने की बजाय पहले उसमें लाइफस्टाइल को ठीक करवाना चाहिए हमें पेशेंट को। तो जो हम आयुर्वेद जो ट्रीटमेंट करता है वो क्या करता है, हम प्रॉपर लाइफस्टाइल को जानते हैं। लाइफस्टाइल को कैसे जानते हैं हम? हमें पता है कि ब्लड ग्लूकोज हमारी बॉडी में ज्यादा हो गया, आयुर्वेद की भाषा में अगर बोलें तो इसको बोलते हैं क्लेद का बढ़ जाना बॉडी में, और हम आयुर्वेद उसी तरीके से ट्रीटमेंट करना भी बताता है कि उस क्लेद को हमें खत्म करना है। हमारी जो अप्रोच है वो कभी भी ये नहीं रहती कि ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना है, नहीं,
हमारा मेन जो पर्पस है वो यही है कि जो फैट सेल बढ़ गए थे जिनकी वजह से रेजिस्टेंस हो रहा था उसको हम कम करें, एक्सरसाइज कराएं, दिन में ना सुलाएं, रात को टाइम पर सोने को बोले हम पेशेंट को। पीने का पानी जैसे कैसा लेना है, अगर आप ठंडा पानी पियेंगे तो ये रेजिस्टेंस कभी खत्म नहीं होगा। जो फैट सेल्स हैं वो हमेशा एबनॉर्मल कंडीशन में ही रहेंगे, वेट लॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस कभी खत्म नहीं हो सकता। तो एक तो खान पान से रिलेटेड चीजें जो है, आयुर्वेद हमें बहुत सारी बातें बताता है कि अनाज कौन सा लेना चाहिए, दालें कौन सी लेनी चाहिए, सब्जियां कौन सी लेनी चाहिए, पानी कैसा पीना चाहिए। अब पानी में प्यास लगती है पेशेंट को बहुत ज्यादा, तो गर्म पानी भी हम नहीं बता सकते क्योंकि गर्म पानी से पेशेंट की प्यास नहीं बुझ पाएगी। तो ऐसे में कुछ मेडिसिन डाल के, जैसे चंदन पका करके फिर उसको ठंडा करके उस पानी को पेशेंट को बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट बहुत सारी सिचुएशंस हम बता सकते हैं। दूसरी बात इसमें ये होती है कि कुछ मेडिसिन जो हमारी हैं वो उस रेजिस्टेंस को खत्म करने का काम करती हैं। जो फैट सेल्स हैं जो बढ़ गए थे जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ था, उसको ठीक करने का काम हमारी मेडिसिन करती हैं। तो ये तो हो गया मैनेजमेंट वाला एस्पेक्ट। अब प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो लाइफस्टाइल को ठीक करना ही हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। अगर थोड़ी भी हमें पता होना चाहिए कि आयुर्वेद के हिसाब से हमारी क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए। उसके लिए आयुर्वेद में अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग ऋतुचर्या बताई गई है। यानी जैसे अगर अभी बसंत का मौसम चल रहा है तो हमारे शरीर में कफ बढ़ जाता है, ऐसे में हम कैसा अनाज खाएं, किस तरीके की दालें, सब्जियां, पानी, इनका सेवन करें। तो ऋतुचर्या को अगर हम फॉलो करेंगे, हर पर्टिकुलर सीजन में अगर हम उन चीजों को फॉलो करते हैं, साथ में एक स्पेशल दिनचर्या होती है कि सूर्योदय से पहले हमें उठना चाहिए, एक्सरसाइज डेली अगर 15-20 मिनट हम करते हैं, मिनिमम 15-20 मिनट एक्सरसाइज हमें डेली करनी चाहिए, दिन भर में एक्टिव रहना चाहिए, और खान पान को भी बैलेंस में बना के रखना चाहिए। खाने के भी बहुत सारे नियम आयुर्वेद में बताए गए हैं कि 2 खाने के बीच में हमें गैप रखना चाहिए। यानी जब तक एक बार का हमने लंच किया, अगर 11-12 बजे आप लंच कर रहे हैं तो आपको कम से कम 5 या 6 घंटे का गैप देना ही देना चाहिए अगले खाने के लिए, और या फिर जब तक आपको अच्छी भूख नहीं लग जाती। तो ये बहुत सारे नियम हैं जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं डायबिटीज को, यानी डायबिटीज हो ही ना। बल्कि ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट से भी, क्योंकि हमें जो ऑलरेडी अफेक्टेड है उन लोगों को तो ठीक करना ही है, हमें उन लोगों को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी तक डायबिटीज जिनको नहीं हुआ है। तो ये खान पान, दिनचर्या, ऋतुचर्या, वेगों को जैसे धारण नहीं करना है। अगर आपको अर्ज होती है यूरिन के लिए, स्टूल के लिए, तो ऐसा नहीं करना है कि वो सब चीजें आप उनको वेगों को रोकें। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आयुर्वेद में बताई गई हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं किसी भी डिजीज को, ना कि सिर्फ डायबिटीज को, बाकी डिजीजेस के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम एक सार्थक जी का मैसेज आया, हमें कमेंट आया है कि आयुर्वेद में बताया गया किसी को अगर डायग्नोज होता है डायबिटीज तो उन्हें आयुर्वेद में बोला जाता है सदाबहार के पत्ते लीजिए। तो मैम कितने इफेक्टिव है डायबिटीज में? देखिए, सदाबहार के ऊपर काफी स्टडीज हुई हैं इसके बारे में, और डेफिनेटली वो काम करता है। बहुत सारी थीसिस इसके ऊपर हुई हैं, काफी स्टडी हो चुकी है, पीजी स्कॉलर्स कर चुके हैं। तो डेफिनेटली ये इफेक्टिव है। लेकिन मैं आपको इस मंच के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप खुद से कोई भी चीज मत लीजिए, चाहे वो सदाबहार के पत्ते हैं, चाहे कोई भी है, क्योंकि हर इंसान की प्रकृति अलग होती है। किस तरीके का आहार विहार की वजह से उसकी बॉडी में ये कंडीशन डेवलप हुई है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप खुद ना करके अगर आप वैद्य के पास जाते हैं तो वही आपको बेहतर बता पाएंगे कि आपको कौन सा आहार या कौन सा विहार या कौन सी दवाई आपको चाहिए। नो डाउट सदाबहार काम करता है, लेकिन फिर भी मेरा मैसेज यही है कि आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए और वो आपकी प्रकृति के हिसाब से कंसल्ट करे, तभी आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। इसके लिए मैं एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे डायबिटीज वाले पेशेंट को मानिए अम्ल पित्त भी है, एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, तो डायबिटीज में डेफिनेटली हम त्रिफला चला सकते हैं, त्रिकटु चला सकते हैं। त्रिकटु यानी जिसमें सौंठ, काली मिर्च और पिपली होता है। वो क्लेद, जो हमारी बॉडी में क्लेद बढ़ गया है, या मैं अगर बोलूं कि ब्लड में शुगर अगर बढ़ गया है, तो उसको वो कंट्रोल करवाता है। लेकिन साथ में उसी पेशेंट को हाइपर एसिडिटी भी थी, तो ऐसे में वो उस पेशेंट को ये चीज नहीं दी जा सकती। तो ना सिर्फ सदाबहार बल्कि कोई भी मेडिसिन
हर पेशेंट के हिसाब से हमें देनी होती है, उसकी बहुत सारी चीजें हमें जाननी होती है, कंप्लीट हिस्ट्री लेनी होती है, और उसके बाद ही हम खान पान में बहुत सारी चेंजेस करते हैं। तो डेफिनेटली कोई भी दवाई आपको डॉक्टर से मिलने के बाद ही लेनी चाहिए। मैम एक क्वेश्चन आया है पीसी की तरफ से। वो कह रहे हैं मार्केट में बहुत सारे शुगर फ्री प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो मैम क्या डायबिटिक पेशेंट जितना चाहे वो शुगर फ्री प्रोडक्ट ले सकता है कितने भी अमाउंट में? बिल्कुल, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इसको हमें बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से क्लेद की जो मैं बात कर रही थी, हम पूरे बॉडी सिस्टम को ठीक करते हैं। इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस हुआ होता है, उस पैथोलॉजी को हमें ठीक करना है। तो उसमें हम सिर्फ ये नहीं देखते कि ब्लड शुगर, जैसा मैंने बोला था ना, अगर हमें सिर्फ ब्लड शुगर मेंटेन करना होता तब तो हम वो सारी वो चीजें आपको रिकमेंड करते जिनमें शुगर लेवल ना के बराबर हो। तो ऐसे में शुगर फ्री प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जो नॉर्मल शुगर चीनी जो हम यूज करते हैं वो नहीं है, उसके अलावा कोई और स्वीटनिंग प्रोडक्ट उसमें यूज किया गया है जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह ना हो, सॉरी कार्बोहाइड्रेट वगैरह ना हो। तो आयुर्वेद की जो स्ट्रेटेजी होती है ट्रीटमेंट की, वो सिर्फ ब्लड शुगर को मेंटेन करने तक फोकस्ड नहीं है। ये ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को हटाना है। अब मानिए आपने लड्डू बनाया, उस लड्डू में कुछ भी शुगर फ्री आइटम जो था, वो लड्डू आपने ऐसा बना दिया कि उसमें जो मीठा था वो चीनी नहीं थी, जो भी अदर प्रोडक्ट्स आजकल आ रहे हैं शुगर फ्री वाले, वो आपने डाला उसको उसकी स्वीटनिंग के लिए। तो अब वो लड्डू अगर आप खाएंगे, आपकी बॉडी में क्लेद कभी कम नहीं हो सकता। मॉडर्न वालों की जो स्ट्रेटेजी होती है, मॉडर्न मेडिसिन वालों की, उनकी स्ट्रेटेजी सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स तक ही सीमित है किसी भी प्रोडक्ट के। जैसे नारियल के पानी की बात करते हैं हम, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 3 होता है, और ग्लूकोज लोड जो होता है, ग्लाइसेमिक लोड जो होता है वो 0 है। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट उसमें ना के बराबर है। लेकिन अगर आप नारियल पानी लगातार पीते हैं, भले ही उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, वो आपके शरीर में क्लेद कभी भी खत्म नहीं होने देगा। आपकी बॉडी टिश्यूज जो, जैसा मैंने बोला था, मसल मास और फैट टिश्यू जो आपके विशिएटेड हो गए थे, जो दूषित हो गए थे, उसको सही करने के लिए हमें ड्राई नेचर की चीजें देनी पड़ती हैं। तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि वो मीठा है या नहीं, हम ये भी देखते हैं कि वो आपकी बॉडी में ड्राइनेस कितना कम करवाएगा, आपकी बॉडी के हिसाब से कितने किस किस तरीके में आपको ड्राई चीजें चलानी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, वो गर्म तो नहीं है, ठंडा तो नहीं है, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा सुटेबल है। यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रुक्ष होती है, रुक्ष यानी ड्राइनेस कराएंगी। जो कोई भी आपकी बॉडी में क्लेग बन गया, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ गया, एक कीचड़ की तरह अब वो काम एक्ट करता है हमारी बॉडी में। तो अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूं, वो कीचड़ जमा हो गया, उसको हमें उसकी सफाई करनी है तो किसी ड्राई चीज से करनी पड़ेगी। किसी बर्तन को हम साफ करते हैं तो राख से करते हैं, मिट्टी से करते हैं, साबुन से करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें बिल्कुल भी सिर्फ मीठा ही नहीं, किसी भी तरीके की ऑयलीनेस उसमें नहीं होती है, बिल्कुल ड्राई होता है वो, तभी उसकी सफाई हो पाती है। तो कुछ चीजें हैं, जैसे त्रिकटु की हमने बात करी थी, काली मिर्च भी ड्राई होती है, हमारी बॉडी में ड्राइनेस कराती है, लेकिन गर्म तासीर की होती है। ऐसे ही नीम, नीम भी ड्राई होता है, बॉडी में ड्राइनेस कराता है, लेकिन ठंडी तासीर का होता है। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें आपके लिए नीम देना है या आपके लिए काली मिर्च देनी है। और इसके अपोजिट, अगर आप कोई भी पकवान बना रहे हो और उसको आप शुगर फ्री फॉर्म में ले रहे हो, तो वो आपकी बॉडी में जाके, क्योंकि ड्राइनेस वाली चीजें देनी थी हमें, वो आपकी बॉडी में, अगर आपने लड्डू बना लिया, आपने चाय में भी अगर आपने वही टैबलेट्स डाली हैं, तो चाय एक दूध से बनने वाला प्रोडक्ट है, और दूध हमारी बॉडी में क्लेद को कम नहीं होने देता। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में चाय पीते हैं या आप दही लेते हैं, दही में आपने वो टैबलेट्स डाल दी, तो दही नेचुरली हमारी बॉडी में उस क्लेद को खत्म नहीं होने देगा, ड्राइनेस नहीं आने देगा हमारी बॉडी में। तो ब्लड ग्लूकोज तो आप मेंटेन कर लेंगे मेडिसिन लेके या इंसुलिन की सहायता से, अगर जरूरत पड़ी आपको उस समय पर, लेकिन आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म नहीं कर पाएंगे। वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम ड्राइनेस कराने वाली थेरेपी ना चलाएं बॉडी में। तो डायबिटीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुगर फ्री के नाम पे जो भी प्रोडक्ट्स हम लेते हैं वो नहीं लेना चाहिए, गलत है। मैम एक क्वेश्चन आया वर्षा जी की तरफ से, मैम फ्रूट्स भी मीठे होते हैं, तो ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं?
देखिए, सबसे बेस्ट फ्रूट सिर्फ जामुन है जो डायबिटिक पेशेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा सारे ही फ्रूट जो हैं वो या तो मीठे होते हैं या खट्टे होते हैं। कुछ फ्रूट्स खट्टे भी होते हैं, जैसे अनार या तो मीठा होता है, या कुछ अनार खट्टे ज्यादा खट्टे वाले भी होते हैं। संतरा है तो वो भी खट्टा होता है, और साथ में ये जूसी नेचर वाले हैं। जूसी होते हैं ना, ये लिक्विड पार्ट इनमें बहुत ज्यादा होता है। तो अभी जो हमने बात करी, हमें ड्राइनेस करानी है बॉडी में। और जामुन आप खा के देखिए, मुंह में जब हम जामुन लेते हैं तो हमारा मुंह सूख जाता है ऑटोमेटिकली। जामुन की टेंडेंसी है ड्राइनेस कराने वाली बॉडी में। तो इसलिए जामुन बहुत अच्छा इफेक्टिव फ्रूट हो सकता है डायबिटीज में। इसके अलावा कोई भी फ्रूट आपको डायबिटीज में नहीं लेना चाहिए। बाकी मेरा और नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी पूछिए पूछिए। मैम, अगर कोई ऐसा कहा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट कभी मेडिसिन नहीं छोड़ सकता है, ऐसे कहते हैं जिंदगी भर उसकी मेडिसिन चलती है, तो मैम मतलब डायबिटीज आयुर्वेद में बिना मेडिसिन से क्योर हो सकता है? कोई नेचुरल हर्ब्स या रेमेडीज? देखिए, मैं फिर से वही बात बोलूंगी, नेचुरल हर्ब्स और रेमेडीज पेशेंट को देख के ही हम बता सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो आंवला और हल्दी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप सुबह खाली पेट लेते हैं, चाय छोड़ देते हैं, दही छोड़ देते हैं, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं। इस पे अगर हम लेक्चर रखें तो बहुत लंबा चल सकता है। तो रेमेडीज अगर आपने बोला तो सिंपल हल्दी और आंवला मिक्स करके गर्म पानी के साथ हम सुबह सुबह 1 चम्मच ले सकते हैं। मेथी हम सुबह सुबह 1 चम्मच ले सकते हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डायबिटीज कंप्लीटली क्योरेबल है। आप आयुर्वेद के पास आइए, और अगर आप शुरू में ही आ जाते हैं, शुरू में मतलब जैसे ही आपको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है उसके 1 या मैक्सिमम 2 साल के अंदर अगर आप हमारे पास आ जाते हैं तो 100% गारंटीड आपका डायबिटीज क्योरेबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको लॉन्ग लाइफ वो मेडिसिन लेनी पड़ती है। लॉन्ग लाइफ मेडिसिन तभी लेनी पड़ेंगी जब आप मीठा ना छोड़ना चाहें, आप एक्सरसाइज ना करना चाहें, आप सही लाइफस्टाइल पर ना आना चाहें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपको उन मेडिसिन पे जाना ही पड़ेगा जो आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करवा सके। हाँ, लेकिन अगर आयुर्वेद में भी आप बहुत लेट आते हैं, जैसे कि आपको कई साल हो गए हैं, और कई साल होने के बाद लास्ट में क्या होता है डायबिटीज में, अगर वो इंसुलिन इंसुलिन क्या है, एक बस की तरह है। उस बस के अंदर हमें बैठना है, यानी ग्लूकोज को उस बस में बैठना है, और वो इंसुलिन उसको जो भी टारगेट सेल था जहां पे उसको पहुंचना था, बस उस इंसुलिन का सिर्फ इतना काम है कि वो उस ग्लूकोज को वहां तक पहुंचा दे। अब आगे जहां उसको पहुंचाना है वो तो रास्ता ही बंद है। वहां पे जब उस सामने वाले ने अपना दरवाजा बंद कर रखा है तो वो बस उसको कहाँ छोड़ेगी? बस तो उसको तभी छोड़ती ना जब वो दरवाजा खुला होता, तो ग्लूकोज अंदर चला जाता, इंसुलिन का काम पूरा हो जाता। तो इंसुलिन का यही काम है। लेकिन अगर वो काम कर ही नहीं पा रहा इंसुलिन, यानी वो दरवाजा लगातार बंद है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपके फैट सेल्स तक, मसल सेल्स तक ग्लूकोज जा ही नहीं पा रहा है, तो इंसुलिन को लगेगा कि वो तो उसका काम कुछ है ही नहीं बॉडी में, बेकार होने लगेगा ना फिर इंसुलिन। तो ऐसी सिचुएशन जब कई सालों तक रहती है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल तक, तो धीरे धीरे इंसुलिन बनना भी कम होने लग जाता है, और पेशेंट का वेट कम होने लग जाएगा धीरे धीरे। अब ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गई, इसको आयुर्वेद में वात का अनुबंध भी बोलते हैं। यानी पहले वो प्योरली कफज टाइप का डायबिटीज था, कफज टाइप का प्रमेह था, लेकिन जब इंसुलिन कम होने लगा, बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होने लगा, जो चीज काम ही नहीं आ रही, तो धीरे धीरे विलुप्ति होती है। तो जब ऐसा होने लगेगा, हमारा वेट कम होने लगेगा, और अब और तरीके की कॉम्प्लिकेशंस भी आने लगेंगी। तो अगर आप सोचें कि उस सिचुएशन में हम आयुर्वेद के पास चले जाएं और कुछ चमत्कार हो जाए, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की कंडीशन भी धीरे धीरे शुरू हो जाती है, हमारी किडनी डैमेज होने लग जाती है, हमारे रेटिना तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि कैपिलरीज जितनी छोटी ब्लड वेसल्स तो डिवाइड होती जाती है, और बिल्कुल एंड में जाके वो कैपिलरी बन जाती है। अगर ब्लड ग्लूकोज उसमें बहुत ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, वहां से पोषण भी नहीं मिल पाएगा। उसके आसपास के, जैसे रेटिना में बहुत माइन्यूट वेसल्स जाती हैं, तो अगर उनमें ग्लूकोज बहुत ज्यादा होगा, स्टेसिस आ जाएगा, रेटिना का प्रॉपर नरिशमेंट नहीं होगा, रेटिनोपैथी शुरू हो जाएगी, नेफ्रोपैथी, नेफ्रॉन्स डैमेज होने लग जाएंगे, कितना उसको फिल्टर करेगी किडनी भी।
तो वो भी डैमेज होने लग जाएंगे, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की कंडीशन आ जाएगी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप शुरुआत की स्टेज में आते हैं और अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहते हैं, हमारी पूरी मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो आयुर्वेद 100% काम करता है। और बहुत सारे लोग जो है वो ठीक हो गए हैं, उन्होंने मुक्ति पा ली है डायबिटीज से। मैम एक आशीष जी का मैसेज आया है कि किसी को अगर जुवेनाइल डायबिटीज है तो उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखिए, जुवेनाइल डायबिटीज कॉम्प्लिकेटेड टाइप की डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज में आ जाता है वो बच्चा, उसका इंसुलिन हमें देखना पड़ेगा। बीटा सेल्स जो है वो उनका डिस्ट्रक्शन ज्यादा तो नहीं हुआ है, इंसुलिन प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को मैनेज किया जाता है, पूरी लाइफ उसको उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा हमें। तो इंसुलिन की बजाय उसमें आप आयुर्वेद ट्राई कर सकते हैं। हम पेशेंट के वेट को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि और दूसरा मैंने आपको गर्भ संस्कार वाली जो बात बताई थी, अगर इस चीज के लिए लोग अवेयर हो जाएं तो जुवेनाइल डायबिटीज के केसेस को कम किया जा सकता है। तो वो तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें बजाय क्यूरेटिव, क्योंकि क्यूरेटिव में तो हम पेशेंट को लॉन्ग लाइफ ट्रीटमेंट देने वाले हैं उसमें, तो इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि डायबिटिक पेशेंट को मंथ में या फिर कितनी बार अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाना चाहिए? देखिए, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट लाइफस्टाइल को और खान पान को, डॉक्टर के बताए हुए खान पान को कितना फॉलो करते हैं। अगर वो प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं और अगर शुरुआत में ही वो डॉक्टर के पास चले गए हैं तो उनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है बार बार चेक करने की। डॉक्टर जैसा बताते हैं तो मंथ में 1 बार या 2 बार या 3 मंथ में HB1AC करवा के और वो अपना चेक कर सकते हैं। लेकिन जो लोग प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं और सिर्फ डिपेंडेंट है ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए कि बस वो बढ़े ना, उसको नॉर्मल रखने की अप्रोच जिनकी होती है, उनको रेगुलर अपना ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए। कई लोग जिनका बहुत ही खान पान गड़बड़ है वो डेली भी करते हैं, लेकिन हफ्ते भर में अगर आप 1 बार टेस्ट करते हैं, अगर बिल्कुल आप लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते हैं, तो वीक में 1 बार आपको अपना टेस्ट कर लेना चाहिए। मैम अगर किसी पर्सन को डायबिटिक डायग्नोज होता है तो पहले एलोपैथी क्यों प्रिफर करता है एज कम्पेयर टू आयुर्वेद? इसका रीजन क्या है? देखिए, माइंडसेट इसका बहुत बड़ा रीजन है। माइंडसेट आयुर्वेद को लेके बहुत बड़ी भ्रांति लोगों के दिमाग में आ गई है कि ये स्लो काम करता है या फिर ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देता, सिर्फ लाइफस्टाइल को या इम्यूनिटी को सही करता है। ये एक इम्यूनिटी वाली और एक नई चीज ऐड हो गई है कोविड के बाद से कि आयुर्वेद इज जस्ट फॉर इम्यूनिटी। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद के पास सभी तरीके की बीमारियों का इलाज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी तरीके की पैथीज को मिलके काम करना चाहिए। जहां पर हमें मॉडर्न मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़े वहां पर हम ले, लेकिन डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और आयुर्वेद से बेस्ट कोई भी पैथी नहीं है जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को मैनेज कर सके। जैसे मैंने आपको बताया, हर एस्पेक्ट पे सोचते हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करने की बात आयुर्वेद करता है, तो इसलिए इस भ्रांति को हमें अवेयरनेस के द्वारा तोड़ना चाहिए और वो आप लोग बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं। तो मेरी बेस्ट विशेष हैं आपके लिए। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आया है धीरज सर से, डॉक्टर धीरज से। ये पूछ रहे हैं कि डायबिटीज टाइप 2 मेलाइटस क्या किडनी फेलियर को ले जा सकता है, मतलब इट लीड्स टू किडनी फेलियर? बिल्कुल बिल्कुल, किडनी फेलियर हो सकता है। किडनी फेलियर हो सकता है और रेटिनोपैथी भी हो सकती है। हमारा विजन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है उसकी वजह से। तो बहुत सारे मल्टीपल सिचुएशंस हमें देखने को मिल सकती हैं। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि डायबिटीज कैसे इफेक्ट करता है हमारे बीपी को? डायबिटीज मैम कैसे इफेक्ट करता है बीपी को, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर को? देखिए, अगर ब्लड में जरूरी नहीं है कि पेशेंट को जो ब्लड प्रेशर बढ़ा है वो सिर्फ डायबिटीज के कारण हो, और भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है। जैसे मानिए पेशेंट को नींद ठीक से नहीं आ रही है, पेशेंट को कोई टेंशन है, तो वो भी एक और सपोर्टिंग फैक्टर की तरह काम करेगा उस ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। तो ब्लड शुगर तो डेफिनेटली ब्लड में शुगर है और वही ब्लड जो आर्टरीज पे प्रेशर डाल रहा था वही ब्लड प्रेशर था। तो उसी ब्लड की अगर कंसिस्टेंसी चेंज हो गई, उसका जितना नॉर्मल
नॉर्मली जैसा ब्लड होना चाहिए था वो वैसा नहीं है, तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा ही, उसके प्रेशर जो वो डाल रहा था आर्टरीज की वॉल पे वो उसमें चेंज आ जाएगा। और जैसे ये ठीक होता है तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर भी ठीक आ जाता है। सी पेप्टाइड का एक क्वेश्चन मैं भी देख पा रही हूँ अभी। यस मैम। हाँ, ये जो है ये पता करने के लिए होता है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज है या नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए ये टेस्ट होता है। बेसिकली प्रो इंसुलिन से जब इंसुलिन बनता है तो साथ में सी पेप्टाइड भी बन जाता है। तो मानिए सी पेप्टाइड अगर कम बन रहा है तो इससे हमें पता चलेगा कि इंसुलिन ही कम बन रहा है, तो वो कंडीशन हमें बताएगी कि ये टाइप 1 डायबिटीज है। लेकिन अगर सी पेप्टाइड हमें ज्यादा, उसके लेवल अगर ज्यादा मिलते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो अपना काम प्रॉपरली कर नहीं पा रहा, तो इस वजह से इंसुलिन बढ़ा हुआ है। तो सी पेप्टाइड एक डिफरेंशिएट कराने वाला टेस्ट है जो हमें बताता है कि टाइप 1 है या टाइप 2 है। लेकिन आयुर्वेद एक बेसिक अप्रोच को लेके चलता है। अगर पेशेंट फैटी है, उसको डायबिटीज है, तो उसका एक अलग तरीके का मैनेजमेंट है, उसमें हमें रूक्षण करवाना है, उसका वेट कम करवाना है, उसकी लाइफस्टाइल को ठीक करना है। और अगर पेशेंट लीन एंड थिन है तो उसको उसका हम ब्रिंडन करेंगे। और उसमें भी कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कई बार पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन के कारण थोड़े टाइम के लिए भी ऐसा हो सकता है कि हमारा इंसुलिन प्रॉपर ना बने। तो जो अंडरलाइंग कॉज था, अगर सिचुएशन थी वो ठीक हो जाएगी तो हमारा इंसुलिन फिर से नॉर्मल आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। सी पेप्टाइड बेसिकली डिफरेंशिएट करने के लिए ही टेस्ट होता है। मैम एक क्वेश्चन आया है कमेंट में कि अगर कोई डेली एक्सरसाइज कर रहा है, डेली डाइटिंग कर रहा है, सब कुछ फॉलो कर रहा है एक रेजीम, तो मैम क्या डायबिटीज बिना मेडिसिन के मैनेज हो सकता है? देखिए, डिपेंड करेगा पेशेंट पे। अगर उसको डायबिटीज हो गया है तो डेली रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं और एक्सरसाइज भी प्रॉपर करते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में पैथोलॉजी किस लेवल तक हुई है, तो डॉक्टर उस चीज को देख के अगर उन्हें जरूरत होगी तो वो बहुत हल्की फुल्की कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। और अगर प्रॉपर सब फॉलो करते हैं, उन्हें जरूरत महसूस नहीं होती, आप इनिशियल स्टेज में उनके पास चले गए थे, तो विद लाइफस्टाइल करेक्शन ये भी ठीक हो सकता है। Thank you, ma'am, for joining us today and sharing so much knowledge with us. नहीं, you guys are really doing a great job and my best wishes, and we hope that आप ऐसे लेक्चर्स आगे भी कराते रहेंगे। Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू डॉक्टर प्रीति। थैंक यू मैम। मैं अपनी ऑडियंस को भी थैंक यू करना चाहूंगी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और हम नए नेक्स्ट टॉपिक को लेके नए सेशन में मिलेंगे आपसे। टिल देन बी सेफ, वेयर योर मास्क, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू मैम।